Good morning, students. Today in this video we are going to take up chapter 4 of your geography book, which talks about air. In this particular chapter we will be covering the topics which I have jotted down on the board, which are like composition of the air, structure of atmosphere, difference between weather and climate, various instruments used to measure atmospheric phenomena, then temperature. We will study about pressure, winds, different type of winds, moisture and types of rainfall. This we need to cover in this chapter. So let's begin with the composition of the air. And we very well know that the air constitute of nitrogen, oxygen and other gases. If I say the composition, the air constitute nitrogen up to 78%, then we have oxygen 20%, and 1% is nearly water vapor. Then we have other gases like carbon dioxide and argon, etc. So if we talk about nitrogen, it is a very important gas for the survival. Many bacteria uses nitrogen for fixation. So you have nitrogen fixation that occurs in plants. I trust you understand. You must have understood this concept of nitrogen fixation by various bacteria in your science also, that they use nitrogen to convert food. Next is oxygen. Oxygen is known as life-giving gas. You all know that we need oxygen for our respiratory system. Oxygen is like byproduct of the process of photosynthesis. Again, what is photosynthesis? We need to recall that photosynthesis is a process which is carried out by the plant, in which they take in carbon dioxide, and with the help of chlorine and sunlight, they convert, they make food for food making process is undertaken in the process of photosynthesis. And in this whole process, what they release out oxygen as a byproduct. And this oxygen is used by human beings. It is very important for human beings for respiratory process. Right, so hereby we have understood nitrogen and oxygen. Next, let's come up to carbon dioxide. This is what we exhale, is CO2 or carbon dioxide, which is used by plants. Beside from this process, we exhale CO2 in the environment. Beside that, CO2 is produced by burning of fossil fuels. Deforestation also increases in carbon dioxide. This could be understood because of the deforestation, there are not much plants who can take up the carbon dioxide which is there in the atmosphere, and they will not convert it. So in one way, the cutting down of trees is also responsible for higher level of carbon dioxide in the atmosphere. And here I would like to make clear that increase in CO2 or the greenhouse gas led to increase in the temperature of the globe, which is known as global warming. We are suffering a lot because of the global warming. This global warming is being taken seriously all around the world, because it is having very harmful effect because of the this increase in this CO2 and this greenhouse gases. What are the greenhouse gases? जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ग्लोब का, उनकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. यानी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो जितना भी आप ये समझ लीजिए कि इसकी वजह से सी लेवल में राइज आ रहा है इंक्रीज होने से. और सी लेवल में राइज मतलब दैट वुड इंक्रीज फ्लडिंग एक्टिविटीज, इंक्रीज इन कोस्टल सबमर्जन are some of the consequences which would be faced by the global warming, and it is very, very disastrous. And that's why government, people, everybody is doing their effort to bring down the impact this global warming. And how can it be done? By controlling the composition of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. So this is a very important topic which you need to understand the meaning of global warming, because as an active and responsible person, we need to contribute to this planet, and we need to control the this greenhouse gases
So that means that we should not do the activities which increase the amount of CO2 in the composition of air beyond the required standards, right? So this was about greenhouse effect. So this is about the composition. This is what you need to cover in the composition of air. You need to know the name of the various gases. You need to know the percentage, and you need to also understand and learn what are the uses of the different gases in the atmosphere. Next we will be taking up structure of atmosphere. Next जो हमें करना है वो है structure of atmosphere. आपकी book में diagram है. There is a diagram which is showing the structure of the atmosphere, and let's study about the structure of the atmosphere. The lowermost layer is troposphere, and its height approximately extend up to 13 kilometer. So this is the layer where you have active weather phenomena which happen. By active weather phenomena, I mean to say that it is the layer where the cloud formation, where rainfall, fog, hail, all these things happen. This layer usually extend up to 20 kilometers, but average height is considered at 13 kilometers. So you need to understand in the structure of atmosphere what is important. You need to very much comfortable with the drawing of the diagram of the structure of the atmosphere. You need to learn the layers serial wise. Then you need to learn their extent, their height, and what happens, what atmospheric phenomena happens in that particular layer. So hereby we have covered the lowermost layer, troposphere. Multiple 1 mark question again can come from name the lowermost layer of the atmosphere, how many layers are there in the atmosphere, what is the extent of this particular layer. So you need to read the chapter thoroughly again and again, and to mark these important lines so that you should be very comfortable in learning all these facts. Okay, so next comes the stratosphere, the layer where most of the planes fly, as this layer is free from weather phenomena. जो weather phenomena था आपका, वो जो था वो आपका lower layer थी ट्रोपोस्फेयर, उसके अंदर तक ही होता है. उसके बियॉन्ड जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर जो है स्टार्ट होती है लेयर, वहां पर प्लेन्स फ्लाई करते हैं, और इसकी जो एक्सटेंड होती है दैट इज 50 किलोमीटर्स. नाउ stratosphere is the layer in which you will find ozone layer. Ozone layer is very important. Oxygen is represented by O2 and ozone layer is represented by O3, and this you need to learn about this layer. Many question comes from ozone layer also. So what exactly is the ozone layer? Ozone layer is a layer which protect us from harmful ultraviolet rays of the sun. Okay, so do underline this particular portion in your book, that ozone layer is a layer which protect us from the harmful ultraviolet rays of the sun. After stratosphere, it is mesosphere. In this layer, where it extend up to 80 kilometers, and most of the meteoroids burn up in this layer. So what you need to learn about mesosphere, that the extent it is 80 kilometers, and most of the meteoroids which enter the atmosphere burns up in this particular layer. Next is thermosphere, and you will see rapid rise or rapid increase in the temperature. You have temperature variation in various layers. जैसे जैसे आप जाएंगे ना, वो आपको वेरिएशन रहेगा. हर लेयर के बाद आपको टेम्परेचर वेरिएशन मिलेगा. तो यहाँ पर 60 डिग्री है. अगेन दिस लेयर हैव आयनोस्फेयर नोन फॉर रेडियो ट्रांसमिशन. सो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच लेयर है आयनोस्फेयर. आयनोस्फेयर इज प्रेजेंट इन द this particular layer, which is thermosphere, okay, which is known for radio transmission, that occurs in thermosphere. Now beyond that we have exosphere, राइट, जहां पर कि बिल्कुल लाइट गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है आपकी प्रेजेंट होती है. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. आपको लेयर्स के नाम याद होने चाहिए, आपको उनकी हाइट एक्सटेंट पता होनी चाहिए, और क्या स्पेसिफिक फिनोमेना वहां पर अक्कर होता है वो भी आपको लर्न करना है.
So this was about the structure of atmosphere. Next, let's move to the weather. What is the difference between weather and climate? क्या समझते हैं हम weather से और climate से? ये दो terms जो होती हैं किस लिए यूज की जाती है और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है? वेदर की जब भी हम बात करते हैं, इट इज चेंज इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन बेस्ड ऑन आवर टू आवर चेंजेस और डे टू डे चेंजेस, राइट? जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर चेंज आपका घंटे दर घंटे हो रहा है या डे टू डे चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वेदर. दिस इज कॉल्ड weather. And then climate जो होता है, climate is a change on an average which has taken place for a duration for 30 years. किसी भी जगह का अगर हम climate की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम उसके average atmospheric condition जो last 30 years से हैं उसकी बात कर रहे हैं. और जबकि हम वेदर फिनोमेना की बात करते हैं, वो डे टू डे या अर्ली बेसिस पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं. लाइक ओके, अगर मैं कोट कर रही हूँ कि लाइक आज टुडे द वेदर इज वेरी ह्यूमिड, तो टुडे मतलब आज, नॉर्मल डेज में नहीं हो सकता है आज जो है वो ह्यूमिडिटी है, नहीं भी हो सकती कल, तो that is for a very short span of time. लेकिन if I am saying that the climate या climatic condition of desert of Rajasthan is arid, that means that I have taken into consideration the average of 30 years of Rajasthan, and based on that I am saying to this conclusion that these area, this part of India are having arid kind of क्लाइमेट. तो अब बेसिक से छोटी सी बात है कि जो आपका वेदर है दैट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन डे टू डे बेसिस या अर्ली बेसिस, एंड जबकि क्लाइमेट जो है इट इज एन एवरेज स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 years, right? Next we need to discuss about the various instruments which we use to understand atmospheric phenomena. Like to measure temperature we use thermometer, and when we talk about thermometers can be in degree Celsius, degree Fahrenheit, Kelvin, and okay, so these are the commonly used scales for temperature. Then we need to understand barometer. By barometer, it is a device by which we measure the atmospheric pressure, और एनोरॉइड बैरोमीटर्स भी होते हैं. देन द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज इज रेन गेज, एंड इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. टेक्निक होती है, बीकर होता है, उसके अंदर आप जो है कितनी रेन हुई है उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको रेन गेज बोलते हैं. देन देयर इज अ विंड वेन, एंड विंड वेन इज यूज टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड is move based on the direction of the wind. ये कैसे मूव करता है? जिस डायरेक्शन में विंड जो है मूव कर रही होती है, तो इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द wind. So now hereby we have learned that there are 4 basic instruments which are used to understand the phenomenal activities, to measure the phenomenal activities: thermometer, barometer, rain gauge, and wind vane. And let's have detailed understanding of temperature. Let us understand temperature, because temperature or pressure are very important things which we need to pursue in the higher classes also. So let me brief you out something about temperature. Temperature is actually, in a layman way I say, it is the degree of hotness or coldness of air. क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एयर का चैप्टर है इसलिए एयर की बात कर रही हूँ. आपका बॉडी टेम्परेचर भी होता है, बट हेयर वी विल कंसंट्रेट ऑन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर, राइट? देयर आर टेम्परेचर चेंजेस इन डे टू नाइट के बीच में भी है, घंटे दर घंटे भी चेंज होते हैं, और सीजन टू सीजन भी जो है टेम्परेचर जो होता है आपका चेंज होता रहता है. अब जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि इफ वी लुक एट अ ग्लोब and if we move from equatorial line towards the polar region, the temperature decreases from equator to poles.
राइट। और दिस थिंग यू नीड टू लाइक फिक्स इन योर माइंड, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि कैसे जैसे हम इक्वेटोरियल लाइन से अबव जाते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है, और जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स में जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइक सनलाइट्स विच आर पोलर रीजन में स्लैंटिंग पड़ रही है, इक्वेटोरियल में डायरेक्ट पड़ रही है। तो टेम्परेचर दिस इज अ फिनोमिना यू नीड टू रिमेम्बर कि हमेशा डिक्रीज होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर to the pole. And in your book you will find a term called insolation. Insolation means incoming solar radiations. जितनी भी radiations आ रही हैं उनको हम insolation, this incoming solar radiations are called insolation. Like okay. अब इसके बाद there is one more concept which you need to understand, that is urban heat island. What is urban heat island? What is being like we need to explain or understand in this urban heat island? We need to understand that the urban areas have to have high temperature because of the various factors. आप शहरों में जो है टेम्परेचर जो है वो हायर होता है as comparative to the country side or the rural areas. The reason being कि बहुत सारे सीमेंटेड रोड हैं, सीमेंट एस्पार्ट्स यूज किए जाते हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं और एक हीट जोन फॉर्म कर देते हैं, उसको हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। प्लांट्स कम है, यू अंडरस्टैंड, एक रूरल और अर्बन एरिया का आप समझ रहे हो ना, मिट्टी है वहां पर, सीमेंटेड नहीं है, तो ये जो सीमेंट है, एस्पार्ट है और ये चीजें जो हैं ये ट्रैप करके रखती है, हीट को रिलीज ही नहीं होने देती, तो इस वजह से एक जो टेम्परेचर जो होता है उस जगह का बहुत हाई हो जाता है। Now, if we talk about the unit of measuring temperature, again Fahrenheit, degree Celsius, Kelvin are there, and degree Celsius is like the standard unit of temperature. What is the standard unit of temperature? Degree Celsius is the standard unit of temperature, and it range from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. 100 degree Celsius is the boiling temperature point, and 0 degree is the freezing point. Just remember this thing. So यहाँ पर हमने टेम्परेचर को भी समझ लिया। नेक्स्ट वी नीड टू मूव ऑन टू द प्रेशर। प्रेशर है क्या? प्रेशर को समझना, इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रेशर एक्चुअली, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो क्या है। जब भी आप किसी ओपन स्पेस में खड़े हो तो एक प्रेशर आपको एक्सर्ट हो रहा है, आपके ऊपर हर साइड से एयर जो है वो प्रेशर लगा रही है, बट दिस प्रेशर इज नॉट विजिबल, या आपको पता नहीं लग रहा। एंड व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वी ये प्रेशर है, ऐसा हमें कब समझ आता है? जब हम मून या ऐसी जगह पे जाते हैं जो बिलो द सरफेस है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि जिस एरिया पे, जिस जगह पे एयर नहीं है तो क्या होता है, हमारी, यू ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ द ब्लड वी आर हैविंग ब्लड प्रेशर। हमारी आर्टरीज में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका एक प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर, इनसाइड आवर बॉडी देयर इज अ ब्लड प्रेशर, राइट। और जो ब्लड प्रेशर होता है, और जो जब हम अर्थ पे हैं तो जो अर्थ का प्रेशर जो है, जो एयर का प्रेशर जो है वो उसको काउंटर करता है, जिसकी वजह से हमें मतलब कुछ रियलाइज ही नहीं होता। ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है हमें तब रियलाइज होती है जब हम या तो मून पे जा रहे हैं या अंडर सरफेस जा रहे हैं, ऐसे एरिया में जा रहे हैं देयर वेयर देयर इज नो एयर। सो व्हेन देयर इज नो एयर देयर वुड बी नो एक्सटर्नल प्रेशर, हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर तो होगा बट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा। अब ये जो ब्लड प्रेशर है ये आर्टरीज के अंदर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जो है ब्रस्ट आउट हो जाएंगी और उनमें ब्लीडिंग हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ पे, मतलब हम लोग क्यों हैं, हमें क्यों हम ठीक ठाक है कि ये जो बाहर का एयर का प्रेशर हो रहा है ना, ये अंदर के ब्लड प्रेशर को काउंटर कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ स्मूथ है। अगर हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं, सपोज वी गो टू अ मून विदाउट एनी स्पेस सूट और समथिंग एंड वी आर देयर, obviously our arteries will burst and it will be like bleeding and it will be very fatal for us. So ये जो जितने भी लोग जाते हैं स्पेस में या मून में जाते हैं, they wear a special kind of space suit. What is that space suit? Actually the space suit is filled with air. Why it is filled with air? So that because on moon or somewhere else where there is no air, we need to like compensate the internal pressure. So people wear this artificially like air filled space
scoot so that the internal pressure, blood pressure can be like compensated, और जो है वो arteries जो है वो हमारी burst ना करें, कोई bleeding ना हो, इसकी वजह से वो चीज जो है वो पहनते। तो अब आपको समझ आया कि ये जो एयर का प्रेशर हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस एयर प्रेशर इज। ओके, व्हाट विल हैपन। ओके, नाउ नेक्स्ट, आप प्रेशर को अगर एक डेफिनेशन में बोलें तो आप ये बोल सकते हैं प्रेशर इज अ वेट एक्सर्टेड एज द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। Highest pressure is felt at the sea level, and as we go up there is a decrease in the air pressure, and this is like verticular। अगर हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे एयर जो है वर्टिकली प्रेशर जो है एक्सर्ट करती है, ऐसे वो हॉरिजॉन्टली भी प्रेशर को एक्सर्ट करती है। एंड हॉरिजॉन्टली एयर के प्रेशर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द मूवमेंट, एयर मूवमेंट। एयर मूवमेंट कैसे होगी? लाइक मान लो एक एयर मास है, एक एयर का मास है, और उसको हमने हीट किया, तो जब हम उसको हीट करेंगे इट वुड राइज, एक्सपेंड। दैट मीन्स द एयर मास विल हैव हाई टेम्परेचर, और जब हाई टेम्परेचर होगा तो वो मूव करेगा। एंड व्हेन इट हैज हाई टेम्परेचर इट वुड हैव लेस प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे लेस प्रेशर होता है, और यही कारण है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स वगैरह का जो है। जो कोल्ड एयर होती है जब वो उसका मास जो होता है वो श्रिंक हो जाती है, और उसका मास जो होता है हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से एयर मूवमेंट्स जो होती रहती हैं, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, लाइक फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर इट मूव्स टू द लो प्रेशर एरिया, राइट। तो लो प्रेशर एरिया जो होता है हमेशा क्लाउडी या फॉगी होता है, और हाई प्रेशर हमेशा क्लियर सनी स्काई होता है वहां पे। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फिनोमिना ऑफ एयर मूवमेंट, हॉरिजॉन्टली कैसे मूव करता है, राइट। कि जो हैवी है जब हैवी हो जाएगा तो वो हाई टेम्परेचर पे वो जो है लाइट वेट होके ऊपर मूव करेगी, और जो कोल्ड होगी वो जो है कंप्रेस के श्रिंक होके उसकी प्लेस ले लेगी। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट कीप ऑन हैपनिंग। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट विंड। व्हाट आर विंड्स? विंड्स आर द मूवमेंट ऑफ एयर from high pressure to low pressure. Wind can will move. Wind can either be gentle in nature or storm. जेंटल विंड का मतलब होता है जब भी क्लीन वेदर फिनोमिनाज होते हैं तो जेंटल है, कूल है, काम है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग विंड्स की अगर मैं बात करूं तो आप उसको एसोसिएट कर सकते हो किसके साथ? साइक्लोनिक विंड के साथ, या सुनामीज जैसे ये स्ट्रॉमी कंडीशंस के साथ। लाइक साइक्लोनिक हो सकता है, सुनामीज हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, राइट। तो विंड्स को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई करते हैं। वन इज परमानेंट विंड विच फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, इन द सेम डायरेक्शन इट हैपन्स। तो हाउ दिस हैपन आई विल जस्ट टेल यू। बिफोर दैट, द सेकेंड टाइम ऑफ विंड इज सीजनल विंड, एंड इट इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑन द विंड। लाइक मॉनसून फिनोमेना को आप इससे रिलेट कर सकते हो कि रिवर्सल ऑफ विंड भी होती है, तो वो सीजनल विंड होती है, फॉर अ टाइम बीइंग होती है। देन देयर आर लोकल विंड्स। सो लोकल विंड्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लू है। इट इज द विंड दैट ब्लो इन द समर सीजन इन राजस्थान और ड्राई एरिड एरियाज ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, लैंड ब्रीज एंड जो है आपको लू जो है एक पर्टिकुलर समर सीजन में ही चलती है, इसको लोकल विंड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिड एरिया के अंदर ही इस तरह की जो है जो विंड है उसको इसीलिए लोकल बोला जाता है कि उनका एरिया जो है डिफाइंड है, वो अपने एक ड्राई एरिड एरिया में ही आपको ये लोकल विंड लू जो है मिलेगी। राजस्थान जैसे एरिया में मिलेगी, ये आपको कभी किसी कोस्टल एरिया में नहीं मिलेगी। ऐसी कोस्टल एरिया की अपनी कुछ स्पेसिफिक जो है कोस्टल एरिया की अपनी स्पेसिफिक विंड है जिनको हम लोकल विंड बोलते हैं, एंड दैट इज द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। ये कोस्टल एरिया की लोकल विंड्स है। तो अगर हम देखें, अगर इसको अंडरस्टैंड करने का हमें जरूरत है कि व्हाट इज लैंड ब्रिज एंड व्हाट इज सी ब्रिज। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लैंड ब्रिज क्या होती है और सी ब्रिज क्या होती है। सो दिन के व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स फास्टर। जो सैंड होती है, जो लैंड होती है कोस्टल एरियाज में, वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू द वाटर। वाटर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, जबकि लैंड जो होती है जल्दी ठंडी हो जाती है रात को। सो वाटर वार्म्स अप होता है, वहां की जो विंड है इट मूव्स अप एंड देयर इज अ सर्कुलेशन ऑफ ब्रिज दैट अकर्स फ्रॉम लैंड टू सी एंड बैक टू लैंड।
लैंड से सी और फिर सी से लैंड को आ रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज द लैंड ब्रिज। ये नाइट के टाइम चलती है, रिमेंबर ये नाइट के टाइम चलेगी। हाउएवर ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड वार्म अप एट मच फास्टर पेस, एज अ रिजल्ट वार्म एयर मूव्स अप इन अ सर्कुलेशन इज कमिंग फ्रॉम सी, इट इज कॉल्ड सी ब्रिज, और डे टाइम पे ही ये जो होगी, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द, दिस आर द लोकल ब्रिज, लोकल ब्रिज है, और इनके अंदर डे ब्रिज क्या है, लैंड ब्रिज क्या है, और सी ब्रिज क्या है, इसको भी आपको यू नीड टू लर्न ऑन दिस थिंग। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द permanent wind. I have told you that the permanent wind blow in a particular direction throughout the year, same direction में वो चलती है। और वो क्यों होता है कि हमारा जो ग्लोब है ऑटोमेटिकली इट इज डिवाइडेड इनटू द बेल्ट्स ऑफ लो प्रेशर, हाई प्रेशर ऑल्टरनेटिवली, राइट। और जो मूवमेंट ऑफ विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है, सो द डायरेक्शन ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और रोटेशन ऑफ विंड भी होती है। द विंड एट ब्लो इन ट्रॉपिकल रीजन आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, और जो आपकी जो पोल्स से चलती है उसको वेस्टर्ली या ईस्टर्ली विंड्स भी बोलते हैं। सो जब हम विंड के बारे में बात करेंगे तो हम परमानेंट विंड के बारे में बात करेंगे, सीजनल विंड्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट लोकल विंड्स। सो फॉर लोकल विंड्स देयर इज लू which like flow in the dry arid areas, and then we have land breeze and sea breeze which happens in the coastal areas। और permanent wind की बात करेंगे तो एक particular direction में move करती हैं, और उसका क्या फिनोमिना है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के अंदर फ्लो करती हैं। और ऐसा क्यों हैपन होता है, क्योंकि ग्लोब जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर लो प्रेशर हाई प्रेशर वाले एरियाज है, तो वो उसमें जो है जो विंड है उसकी मूवमेंट रहती है। नाउ देयर इज अनदर टॉपिक विच वी नीड टू कवर विच टॉक्स अबाउट मॉइस्चर या प्रेसिपिटेशन। तो अगर मैं मॉइस्चर की बात करूं तो मॉइस्चर होता है एक्चुअली इट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द वाटर, कितना वाटर कंटेंट है उसके अंदर, उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं। ओके, एंड जब भी यू हैव एयर मास जो कि हीट अप होते हैं, हॉट होते हैं, और जब वो हॉट होते हैं इट रेजेस, जब वो रेज करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनका सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है, उसके बाद देन देयर इज कंडेंसेशन, वो कंडेंस करते हैं, एंड that occurs, and this condensation led to the formation of cloud, and these clouds cool down and we have rainfall। तो क्या बिल्कुल जो वाटर साइकिल आपने समझी थी उसके अंदर यही हो रहा था कि जब गैसेस गर्म हो रही हैं, जब एयर मास जो है वो हीट अप हो रहा है तो वो रेस कर रहा है, और जब वो ठंडा होता है, सैचुरेशन होता है, कंडेंसेशन होती है, उसकी ठंडा होती है तो क्लाउड्स बनते हैं, और जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो रेनफॉल के फॉर्म में जो है वो अर्थ पे आ जाते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑल्सो विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। And what are the types of rainfall? There is a cyclonic rainfall which occurs due to cyclones, जो साइक्लोन के साथ आती है उनको हम साइक्लोनिक एयरफॉल कहते हैं। देन देयर इज लाइक कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो नॉर्मल प्रोसेस है रेनफॉल का, कि पानी गर्म होके भाप बन के उठेगा, देन इट विल बी कंडेंस, इट विल फॉर्म क्लाउड्स, एंड देन क्लाउड्स से वो जो है जब हैवी हो जाएंगे तो रेनफॉल हो जाएगा। दिस इज कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल। साइक्लोनिक जब साइक्लोन्स के साथ जो है बारिश होती है। एंड देन देयर इज रिलीफ, जिसको हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाउड्स बन गए हैं, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं और बीच में माउंटेन आ जाती है। जब बीच में माउंटेन आ जाती है तो वो जब टकराते हैं क्लाउड्स माउंटेन के साथ, अभी वो उस पॉइंट पे पहुंचे हैं नॉर्मल की रेनफॉल हो ऐसा हो या नहीं, लेकिन जो हिट होता है ना माउंटेन की वजह से, तो उस हिट की वजह से ये क्या करते हैं, पोर डाउन कर देते हैं रेन माउंटेन के एक ही एरिया पे। और माउंटेन का एक एरिया जो रिसीव कर लेता है सारी रेनफॉल को, उसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं। और जो माउंटेन का ऑपोजिट है, क्योंकि क्लाउड्स तो आए यहाँ तक टकराए और यहीं पर हो गया, तो दूसरे साइड तो क्लाउड्स पहुंचे ही नहीं वहां, तो वो तो ड्राई एंड रह जाएगा। एंड दिस ड्राई एंड इज नोन एज लीवर्ड साइड, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विंडवर्ड साइड एंड व्हाट इज लीवर्ड साइड। और ये कौन सा रेनफॉल का टाइप है, दिस इज relief or orogenic type of rainfall. So this was all which we need to like cover in this particular chapter. Just go through the video and do thorough reading of the book, and whatever doubts you have regarding this chapter we will be taking up in the doubt class which will follow today. I will be updating you about the
doubt class, live doubt class. And that's all from my end for today. Bye bye, take care.